Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today you will be surprised to see the new video starting. As you can see that I am showing you some reflection of light, right? As we are going to start the new chapter, that is light reflection and refraction. So I thought rather start with an experiment. So as you can see that there is a source of light as a battery I have taken, and with the book support I have kept a plane mirror, as you can see over here, right? And when I am making a light incident over a plane mirror, then you can see that due to reflection some light is formed on the wall, and the light is same, that is white light, right? So this is the small experiment that I have conducted for you all to make the clear idea about reflection. Now we will see how refraction happens. See also, for refraction experiment I have taken a small glass, transparent glass, from which the light can pass, and I have taken one pen, right? So see, if you are observing from here, means from air to water, here there is air, right? And here as the medium is changing, transparent medium is changing, so you can see that there is some bending of pen is found. That is due to the bending of light, which is the new phenomena that is known as refraction. If you are seeing from upper side, you will see that there is no bending. But if you see exactly from the point where I am shooting the video, or then you can see that there is a bending of light, right? There is a bending of light. You can see it easily. There is a bending of light, right? So now we will discuss that what is this reflection, what are the laws of it, right? So hello all. So after seeing the experiment, you must be clear that what is reflection and what is refraction, right? If you see on the right hand side of the board, you can find some mirror, and in the mirror you can find some images of the objects like hair oil. You can see the object like comb, and if you can also see there is a some bottles are present, right? So we will continue this topic, reflection and refraction. See, first of all, ये आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, मैंने दो एरो से इंडिकेट किया है, ऐसे वाले दो एरो, right? So what you can see, the light is coming from one side, and by striking at one point, it is getting reflected, or it is coming to the same medium. We can say जहां से आया था वही मीडियम में वो वापस आ रहा है. और इसमें आप देख सकते हो थोड़ा बेंड हो गया. लाइट एक्चुअली जाना चाहिए था स्ट्रेट अवे, पर वो गया कैसे, बेंड होके चला गया. क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइन है, तो एक मीडियम है. कैसा मीडियम है ये? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, बाहर एयर थी और यहाँ पे क्या था, वाटर था. तो रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी नहीं है. रिफ्लेक्शन है वो ओपेक मीडियम में होगा, रिफ्रैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा. ये सबसे पहली चीज है जिसमें सब लोग गलती करते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन होता है ना, वो हमेशा एक ओपेक मीडियम में होने वाली चीज है. रिफ्रैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगी. ठीक है, अब ये लाइट के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई लाइट आई ना तब हमें ये पढ़ना पड़ा था. तो लाइट कहां कहां पे यूज होती है? यू कैन सी दैट लाइट मेक्स अस विजिबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस. लाइट के कारण ही हम हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं इन डे टू डे लाइफ. एंड एज यू ऑल नो दैट व्हिच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ light which is available on earth, it is nothing but sun or a solar energy, right? Now we will see that how this light has two important phenomena, that is reflection and refraction. In this chapter you will also find the laws of both of this, that is laws of reflection which you have already studied in the earlier classes, and laws of refraction which you will study in class 10, right? Then you will find the formula for mirror as well as lens. See, I am reciting mirror and lens, so I can say or you can identify that mirror क्या करने वाला है. मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन करने वाला है, ठीक है. और जो लेंस, मैं जब लेंस बोलता हूं तो वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये दोनों फिनोमिना हैं, वो करने वाले दो डिवाइसेस हैं. कौन कौन से हैं? मिरर और लेंस, ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो. ठीक है,
जो एक डिवाइस में फिट होते हैं। तो रिफ्लेक्शन है वो मिरर करेगा और रिफ्रैक्शन है वो लेंस करने वाला है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है, चैप्टर 10 पढ़ने की जरूरत क्यों है? अरे देखो, you are finding reflection in each and everything. See, each and every light which is emitted from a source, suppose it is from the tube light, right? It is absorbed, and because of the reflection you are seeing the object which are visible to you, right? और आप मिरर का यूज तो रोज करते हो, right? But how this happens? This you will study in this chapter. लेंस का आपको कई सारा यूज मालूम है। अभी मोबाइल फोन जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट है, राइट? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द आई डिफेक्ट देन यू हैव टू वेयर सम लेंस, राइट? सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने तो थोड़े बहुत लिस्ट किए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मिरर के आप बोलो तो आप रियर व्यू मिरर के जैसे आप यूज करते हो। रियर व्यू मिरर मतलब पीछे को देखने वाला, पीछे से जो इमेज होती है उसको देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो रियर व्यू मिरर। आप शेविंग के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हो, ठीक है? ऐसी कई सारी चीजें जहां पे इसका इंपॉर्टेंस आता है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाय स्टडीइंग द रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ठीक है? पहले रिफ्लेक्शन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है? दूसरा हम वो देखेंगे उसके लॉज क्या है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। Okay, so let us continue with reflection. As you can see the diagram, right? Light is coming from one side, right? I can say from the left hand side if the light is coming, then on the right hand side it is traveling, but the plane is same, right? And the medium is also same. So the phenomena, so the definition which will become the phenomena in which incident light after striking through polished surface remains on a same medium. ऐसा फिनोमिना जिसमें इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करने के बाद वही सेम मीडियम में रहती है, वो वाले फिनोमिना का नाम होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है? उसमें मेन आपकी तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे दिख रही है। एज यू कैन सी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, राइट? दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। व्हाट इज द सरफेस दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर? देखो मैं ये जो डार्क लाइंस बना रहा हूँ ना, ये ओपेक मीडियम की निशानी, ठीक है? ये है वो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस मतलब मिरर का शाइनिंग पोर्शन, और ये वाला है वो कलर्ड पोर्शन होता है, कलर्ड पोर्शन, ठीक है? ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। फिर ये एक लाइन जो बन रही है और मैंने ये इंडिकेट किया है, उसका मतलब क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। इट इज द नॉर्मल लाइन। कौन सी लाइन है ये? नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन विच इज मेकिंग 90 डिग्री with your reflecting surface, या फिर पॉलिश सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको हम नॉर्मल लाइन बोलेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी 2 मार्क में आ सकता है, राइट? तो पहला लॉ है the angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is, angle I will become equal to angle R. अभी angle I और angle R क्या है? चलो बताता हूं। देखो, the angle which is formed between incident ray and normal is defined as angle I, and the angle which is formed between reflected ray and normal is called angle R, and the
दैट इज द टू एंगल विल बी इक्वल। मतलब ये अगर 45 डिग्री होगा, सपोज फॉर एग्जांपल इफ द एंगल I is 45 डिग्री, then angle R will also be 45 degree। समझ में आ रहा है? So angle I will always be equal to angle R। ये सभी मिरर के लिए फॉलो होता है, स्फेरिकल हो तो भी ठीक है, प्लेन मिरर हो तो भी ठीक है, राइट? What is the second law of reflection? Let's see. Second law. The incident ray, the reflected ray, and normal ray lies on the same plane। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला लॉ कि भाई जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, सब कुछ एक ही प्लेन में आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ये भी एक ही प्लेन में है, यू कैन सी ये प्लेन एक ही है, मैंने पहले भी बोला था ये एक ही प्लेन है। जैसे कि ये प्लेन का नाम मैं P देता हूं। अभी आप एक चीज इसका रिवर्स चीज सोचो, इफ दिस लॉ इज कंप्लीटली फॉल्स, मतलब कि ये लॉ है ही नहीं, आप ऐसे सोचो तो क्या होता? इंसिडेंट रे यहाँ पे जाता, कोई भी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे चला जाता, तो आपकी इमेज आपको वही सेम रूम में नहीं दिखती। मतलब कि आप रोज अपनी इमेज वही सेम रूम में देखते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट। वरना तो अगर देखो सेम प्लेन में नहीं होती आपकी इमेज तो वो दूसरे रूम में चली जाती। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल बात है कि भाई जो हमारा इंसिडेंट है, मतलब लाइट हमारे से इंसिडेंट होके जो इमेज फॉर्म कर रही है वो सेम रूम में होती है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, सब एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। ठीक है? सो दिस वाज द सिंपल फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन, एंड these आर द टू लॉज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब क्या? जो एक स्फीयर में से मिरर बनाए हैं उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। Yes, so let us continue with the topic that is curved spherical mirror. So as you know, all know, कर्व का मतलब एक कर्व होता है, स्फीयर से बना हुआ एक मिरर है। ठीक है? स्फीयर में कर्व ऑलरेडी होता है तो उसका यूटिलाइज करके स्फेरिकल मिरर बनते हैं। ठीक है? वो कर्व है वो दो टाइप के होते हैं, एक अंदर से होता है, एक बाहर से कर्व होता है। एक अंदर वाला कर्व और एक ये बाहर का कर्व। ठीक है? एक मिरर ऐसा होता है कि जिसमें अंदर वाला कर्व है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और एक मिरर ऐसा होता है जिसमें कि बाहर वाला जो कर्व है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। ठीक है? इसमें आपको मैं बता दूं, जहां पे पॉलिश्ड सरफेस है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है। इट इज सेम एज योर पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस है ना, वहां पे ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, कलर्ड सरफेस में रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू स्फेरिकल मिरर विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल। ठीक है? तो देखो ये बॉल है, उसका आप ये सरफेस कंसीडर करो, ये वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है, राइट? जो ये वाला सरफेस मतलब कि अंदर की तरफ जो है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट इज लाइक केव स्ट्रक्चर, राइट? और इसको मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं कॉमन जो हमने प्लेन मिरर में भी देखी थी, एक शाइनी सरफेस और एक कलर वाली सरफेस जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो देखो शाइनी वाली सरफेस ये अंदर वाला पोर्शन है, आप देख सकते हो, ये वाला कर्व आप ड्रॉ करोगे तो आपको अंदर का इनवर्ट सरफेस मिलेगा। तो ऐसे वाले मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो गुफा की तरह शेप होता है, ये वही पार्ट है चम्मच का जिसे आप खाते हो। ठीक है? इट इज नेम एज कॉनकेव मिरर। ओके, अब ये कॉन्वेक्स मिरर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ऑपोजिट हैंड में मैं बॉल लेके देखो, अब आप देखो ये वाला सरफेस देखो आप, तो आपको ऐसा लगेगा दैट इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स जो होता है, आउटवर्ड्स का मतलब होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये वही वाला पोर्शन है जिससे आप खाते नहीं हो, मतलब चम्मच के नीचे वाला पोर्शन, राइट? स्पून के ये वाले पोर्शन में आप सब चीजें भर के खाते हो, और ये वो पोर्शन है कि जहां पे आप चीजें भर के खाते नहीं हो, मतलब नीचे वाला पोर्शन। समझ में आ गया, राइट? सो इट द होल मिरर is made from a ball.
ये बॉल को अगर मैं पीस कट करके पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसमें से जो दो पोर्शन बचेंगे उसमें से जो इनवर्ड वाला पोर्शन है, जो अंदर की तरफ बेंट वाला कर्व, अंदर कर्व है, वो वाले पोर्शन का नाम है कॉनकेव मिरर। जो बाहर की तरफ कर्वेचर में है, जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर के साइड से होने वाला है, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है। इसमें जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है तो आउटवर्ड साइड में कलर्ड पोर्शन होता है जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें जैसे ही आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन पॉसिबल है तो अंदर की तरफ कलर वाला पोर्शन होता है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कलर्ड सरफेस को हम बोल सकते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कितना भी लाइट डाल दो इसमें, नो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन पॉलिश सरफेस। यही सरफेस में आपको रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड convex mirror. In next lecture, we will see that how light comes, what are the various parameters that affects the mirror, right? What is the mirror formula, right? And what is the different axis or what is the different distances for the mirror? We will also see the ray diagram for the it, right? तब तक पढ़ते रहिए. Do watch the experiment very carefully. Happy learning. Do like, subscribe and comment my channel. Thank you.